Good morning students, hope you are doing well. This is your first class of accountancy of chapter partnership. During vacations and before that we have completed our first chapter of not for profit organization of book 1 and first, second and third chapter of book 3. So here I am going to start a new chapter, accounting for partnership. In this video I am going to explain you some theoretical portion of partnership and then we will do some practical questions. Here I am going to request you all the students kindly do practice of all the practical questions, and if any query occurs please let me know so that we can solve the questions together. So first this video belongs to only theoretical portion, so let's get started. The first point is definition of partnership. As you have already learned in your class 11 that the partnership is an association between two or more persons who agreed to share profit in future and losses as well, carried on by all or any of them acting for all, means any one partner can carry the business or any of them of all the partners can carry the business. So here though definitely this theory like what is partnership cannot come in CBSE board for your class 12 accountancy paper, but though this is just a revision of your last class partnership definition. So please read. Partnership under section 4 of Indian Partnership Act 1932, the relation between persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all, right? And what do you mean by deed? You can say this is an agreement. So partnership deed is a written agreement. If deed is not in written, then you know that there may be controversy among the partners, and if deed is there, then it will be a legal proof in case there is any dispute between the partners or among the partners. So a deed is a written agreement between the partners and accounts are prepared as per partnership deed. What is in partnership deed? It is in the partnership deed that what is the ratio between the partners, how interest on capital is calculated, how interest on drawing, and where is the office, who will be the acting partner, who will be the non-active partner, and many other things which a partner requires to know during his partnership agreement. So partnership deed may be written, but it is not compulsory. As you know that partnership deed can be written or cannot be written. So it is not compulsory, but if it is written, then it will be beneficial for all the partners. So if there is a partnership among the partners without deed, means there is no agreement among the partners regarding the deed, regarding the agreement, then what would happen? Only these points will happen. So in your question, if nothing is specified, then it is assumed that there is no deed among the partners. So it means when there is no agreement between the partner, if there is a dispute between the partner, the following points consider. For example, there is no deed between you and me. You and I in a partnership, but there is no deed. If there is a dispute between you and me, then court will decide on which ground. So there are certain assumptions which need to be considered by the court. So the first one is no interest on capital is allowed to any partner. If there is no deed, then no interest on capital will be allowed. For example, you and I are partners, and if I am an active partner in the partnership and I claim that being an active partner I have to earn certain interest on capital, but since there is no deed, as I told, there is no deed, so when I go to court, the court will do? The court will dismiss my claim and ask me that there is no interest on capital is allowed if there is no deed. Understand? Next, no interest on drawing is charged to any partner. So capital means what I invested in a firm, drawing means what I withdraw from the firm. If there is no partnership deed means
कोई एग्रीमेंट ही नहीं है हमारे बीच। और अगर मैं कोर्ट में जाती हूँ तो क्या होगा, इफ़ देर इज़ नो डीड देन कोर्ट क्या बोलेगी, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो लड़ाई झगड़ा ख़त्म। नो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स करंट अकाउंट इज अलाउड। सो ये दीज आर दी वर्ड जो करंट अकाउंट वगैरह है दैट यू कम टू नो एट लेटर स्टेज। बट एक ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ना तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगी, करंट अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट मिलेगा, कोई सैलरी, कोई रेम्यूनरेशन, कोई कमीशन, कोई बोनस नहीं मिलेगा, चाहे आप एक्टिव पार्टनर हैं चाहे आप इनएक्टिव पार्टनर हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन, इन केस मैंने कोई लोन दिया है यहाँ पे, आई एम गिविंग लोन टू अ फर्म, टू द फर्म ऑफ पार्टनरशिप इन विच वी आर। सो जो मैंने लोन दिया है उस पर मैं बोलूँगी नहीं मुझे तो 16% का इंटरेस्ट चाहिए, 16% आई वॉन्ट टू, बट अकॉर्डिंग टू द रूल कितना मिलेगा मुझे, मैक्सिमम 6%। ओके, ओनली 6% इज अलाउड। शेयरिंग ऑन प्रॉफिट लॉसेज इक्वली, इफ़ देर इज़ नो डीड, भाई अगर रेशियो है तो बढ़ा लो, ये मैं लूँगी 60%, आप लोगे 40%। अगर नहीं है, कोई डीड नहीं है, देर इज नो एग्रीमेंट, देन रूल क्या कहता है कि आपका जो प्रॉफिट और लॉस है वो क्या है, इक्वल। नो पार्टनर शैल बी एडमिटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, दिस इज़ वेरी नॉर्मल थिंग दैट विदाउट द कंसेंट, अगर एक भी पर्सन अग्री नहीं है दैट देन a new partner cannot be admitted into the firm. So basically you have 5 or 6 points which is very important. First, no interest on capital. Second, no interest on drawing. Third, no remuneration. Fourth, interest on loan will be allowed at 6%. And fifth, which is very important, is profit and losses shall be shared equally. Repeat once again with me. First, no interest on capital. Second, no interest on drawing. जो important है, I am going to repeat them all. So these 5 are very important. First is no interest on capital. Second, no interest on drawing. Third, no salary, no commission, no bonus. Fourth, in case of loan the rate of percentage is 6%. And the last point is sharing of profit and loss equally. So here आपको पता है इन द लास्ट क्लास यू हैव प्रिपेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। उसके बाद एक सेकेंड, उसके बाद क्या होता है, हम ये वाला अकाउंट बनाते हैं एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है जो प्रॉफिट और लॉस आया मेरे को उसे एप्रोप्रिएट करना है। मान लीजिए हम ए, बी और सी 3 पार्टनर्स है, तो मैं कुछ इनको भी दूंगी, कुछ इसको दूंगी, कुछ इसको दूंगी। एप्रोप्रिएट करना, बंटवारा करना। अब वो पार्टनर्स में भी हो सकता है, देन मेरे को कुछ जनरल रिजर्व में भी डालना है, तो मीन्स होता है जैसे हम ना, मेरे पास पैसा आ गया, सैलरी आ गई, ठीक है, देन व्हाट वी डू, वी एप्रोप्रिएट आवर फंड्स। कुछ यहाँ रखना है, कुछ इसका इस्तेमाल यहाँ करना है, उसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आपको ये बात समझ जानी चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कब बनता है, दिस इज गोइंग टू बी डन आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, सबसे पहले ऊपर बिल्कुल, उसके बाद जो है वो बनता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। सो दिस इज जस्ट लाइक दैट, we need to prepare profit and loss appropriation account just to allocate and distribute the profit. So here it is, this is the format of profit and loss appropriation account. आपको पता है वी आर गोइंग टू प्रिपेयर, यहाँ वाली साइड डेबिट होती है, यहाँ वाली साइड क्या होती है, क्रेडिट होती है। देन पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट दैट इज क्रेडिट अमाउंट। यहाँ पे क्या लिखा जाता है बच्चे, यहाँ पे लिखा जाता है 2, तो आपको ध्यान से देखना है, दिस इज़ 2 साइड, दिस इज़ बाय साइड। अब मैं आपको इसी में एक्सप्लेन करती हूँ, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे ऐसे बनाते थे, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस होता था, तो यहाँ पे हमारा क्या आता था, 2 नेट प्रॉफिट आता था ना, इस वाली साइड पे आता था ना, फिर हम यहाँ पे टोटल करते थे, ऐसे ही होता था। देन ये वाला जो प्रॉफिट 2 साइड है, तो वो इधर जाके कहाँ आएगा, बाय साइड। क्यों, क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन समझ दो इसके नीचे बना हुआ है,
समझ आई बात। तो ये इसके नीचे वाला पार्ट है, तो जो यहाँ आएगा वो अल्टीमेटली किधर जाता है, इधर। तो इसलिए जो पहला वाला पार्ट है हमारा यहाँ पे, ये नेट प्रॉफिट कहाँ से आया हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस ऊपर जो इस तरफ होता है नेट प्रॉफिट, वो हमारा उतर के इधर आएगा। उसके बाद ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछती हूँ, अब लॉस होगा तो किधर आएगा, ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा। अब दो चीज़ें तो एक साथ कभी नहीं हो सकती, दो चीज़ें कभी नहीं हो सकती, लॉस और प्रॉफिट एक साथ नहीं आ सकता। तो या तो क्वेश्चन में ये होगा या क्वेश्चन में ये होगा। सो देयर मस्ट बी ईदर ऑफ द टू, डेफिनेटली बोथ ऑफ देम नहीं होंगे, फर्स्ट थिंग। अब दूसरी चीज़ ध्यान रखिए, जो भी चीज़ हम पार्टनर को देंगे, पार्टनर को हम क्या देते हैं, पार्टनर को वी आर गोइंग टू गिव इफ़ देयर इज़ अ डीड, हम उसको सैलरी देंगे, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, उसको कमीशन देंगे, उसको प्रॉफिट देंगे, ठीक है। तो और कुछ पैसा जनरल रिजर्व में डालेंगे। तो जो चीज़ हमें देनी है वो यहाँ पे आएगी, और जो चीज़ हमें लेनी है दैट इज़ गोइंग टू बी बैक, उसको हम यहाँ लिखेंगे। तो देखिए, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये हम पार्टनर को देंगे, यहाँ आएगा। पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, कोई भी पैसा हो सकता है ना, जनरल रिजर्व, जैसे इन द लास्ट क्लास यू हैव लर्न दैट प्रोविजंस एंड रिजर्व्स आर क्रिएटेड। सो प्रोविजन रिजर्व क्रिएट हो रहा है, तो किस में से क्रिएट हो रहा है, प्रॉफिट में से तो क्रिएट हो रहा है। तो जो भी चीज़ आपके प्रॉफिट को कम करती है, बांटते हैं हम प्रॉफिट को, वो हमारा यहाँ आता है जनरल रिजर्व। और हमें कुछ चीज़ें पार्टनर से लेनी भी होती है भाई, पार्टनर हो सकता है हमने पार्टनर को लोन दिया हो, या कुछ भी हो सकता है, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, या हमें मैनेजर को कुछ भी हमें जो देना है वो हमारा इस तरफ आता है। तो लाइक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन माइनस करेंगे, मैनेजर को कमीशन दे, भाई मैनेजर हमारे घर का तो है नहीं, हम पार्टनर को प्रॉफिट बांटने से पहले किसको देंगे, मैनेजर को उसकी कमीशन वापस करेंगे। समझ आया है, क्योंकि बिकॉज मैनेजर इज़ आवर एम्प्लॉय, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, अब पार्टनर जो है हमें लोन दे रहा है, तो भाई पार्टनर जिसने हमें लोन दिया उसको पहले हम इंटरेस्ट देंगे, तभी तो जो बचा हुआ प्रॉफिट है हम अदर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि बिफोर गिविंग एनीथिंग टू द पार्टनर्स, फर्स्ट गिव इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, देन मैनेजर कमीशन। अगर मेरे पार्टनर के रेंटेड, पार्टनर मेरा लैंडलॉर्ड भी है, पार्टनर के मैं रेंटेड एकोमोडेशन में अपना बिजनेस चल रहा हूँ, तो भाई पार्टनर को रेंट भी देना पड़ेगा, ठीक है। पार्टनर जो है ड्राइंग लेता है, ड्राइंग मतलब ही विड्रॉ समथिंग फ्रॉम द कंपनी, सो जो इंटरेस्ट है, हम पार्टनर हमें कैपिटल देता है तो हम पार्टनर को इंटरेस्ट देते हैं, है ना। लेकिन अगर पार्टनर हमारी कंपनी से ड्राइंग करता है, ड्राइंग मीन्स विड्रॉ समथिंग, देन व्हाट वी डू, वी आस्क हिम कि मुझे पैसा दो। सो जो भी ऐसी चीज़ है, बड़ी सिंपल बात है, जो भी ऐसी चीज़ है जो हमारे प्रॉफिट को कम करती है वो यहाँ आएगी, जो हमारे प्रॉफिट को बढ़ा, जो हमें लेनी है वो यहाँ आएगी, ठीक है। या और दूसरे तरीके से भी, जो चीज़ें हमें पार्टनर को देनी है वो यहाँ आएगी, और जो चीज़ें हमें पार्टनर से लेनी है वो यहाँ पे आएगी। अंडरस्टैंड। इसी तरीके से हमारे जर्नल एंट्रीज हो जाती हैं। अब आप बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, जर्नल एंट्री आपको याद ही नहीं करनी। अगर आपने ऊपर वाला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना लिया, देन बहुत आसानी से आप जर्नल एंट्री कर दोगे। एग्जाम में जर्नल एंट्री आती है, सीबीएसई पैटर्न हैज़ नाउ चेंज्ड। लास्ट टाइम तक सिर्फ 11th में आती थी जर्नल एंट्रीज, बट 2 to 3 ईयर्स से सीबीएसई जर्नल एंट्रीज डालने लग गया है। तो बेटर है कि आप याद कुछ नहीं करना है, जस्ट आपने क्या करना है, मान लीजिए आपकी एंट्री आए कि मुझे तो पार्टनर को क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो एंट्री क्या होगी भाई, ये क्या है 2, ये क्या है बच्चे 2 है ना। ये आपको ध्यान रखना है बस कि अगर मैं पार्टनर को कुछ दे रही हूँ तो वो 2 साइड आएगा, क्यों, क्योंकि वो मेरे को देना है, और लेना है तो कौन सी तरफ आएगा, वो बाई साइड आएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो इसी तरीके से देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, अभी ऊपर वाली एंट्री में आपको बताऊंगी बिकॉज हम अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, आप पहले ये समझ लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अभी ऊपर वाली भी बताएंगे।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ड्राइंग हमारा किस तरफ था, इधर था, तो एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, है ना, क्योंकि वो डेबिट साइड है, तो ये देखो ये आ गई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अगली एंट्री क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांस, तो देखिए यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांस किधर था, इधर था, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, तो ये क्या हो जाएगा, ये कौन सी वाली साइड में जाता है भाई, ये तो टू नहीं है, बाय है, तो क्या हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा, और टू क्या हो जाएगा हमारा, टू ये हो जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो क्या एंट्री हो गई हमारी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू, ये टू इंटरेस्ट, हाँ, तो क्लास में आपको क्या बता रही थी कि जो हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है वो हमारा डेबिट साइड है, क्यों, हमें सबसे पहले उसमें से कम करना है, किसी को भी प्रॉफिट देने से पहले माइनस करेंगे ना। अब यहाँ पे ये माइनस लिखा है कि हमें सबसे पहले इसको माइनस कर देना है, क्यों, क्योंकि हम किसी को प्रॉफिट बांटने से पहले, भाई पार्टनर ने लोन दिया है वो हमें पहले देना है, मैनेजर की कमीशन है वो हमें पहले देनी है, तो हमें क्या करना है, हमने इसको डेबिट करना है, जैसे मैंने आपको बताया। देखिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन डेबिट टू पार्टनर्स लोन, या तो हम पार्टनर्स लोन करेंगे या सीधा हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमारा नॉर्मल खर्चा है। देखो मैं आपको दोबारा से बताती हूँ अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है। देखिए हमारा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अब इसके अंदर क्या होता है, हमारे वो सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो ज़रूरी हैं, ठीक है, जिसको हमें किसी पार्टनर्स, अब पार्टनर कौन है, पार्टनर तो भाई घर का बंदा है ना, जो घर का बंदा है उसको पैसा बाद में मिलेगा, पहले बाहर वालों की देनदारी होगी, तो बाहर वाले कौन है हमारे, बाहर वाले हमारा है मैनेजर, ये तो आपको कंफर्म है मैनेजर है, लेकिन बाहर वाला हमारा वो भी है कौन, पार्टनर का लोन, क्यों पार्टनर का लोन हमारा बाहर वाला है बच्चे, क्यों, क्योंकि ये पार्टनर तो हमारे घर का है, लेकिन ये लोन तो किसी और को भी तो दे सकता था, या हम किसी और से भी तो लोन ले सकते थे। अगर हम मान लीजिए मैं इसे छुपा दूं कि नहीं नहीं ये जो हमारा है सिर्फ हमारा लोन है, तो आप एक बात मुझे बताओ कि आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन करने से पहले, यानी कि प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करने से पहले इस लोन का इंटरेस्ट दोगे नहीं दोगे, दोगे ना। तो बस यही बात है कि चाहे ये लोन बाहर से लिया हो चाहे ये मेरे पार्टनर का लोन हो, सबसे पहले इसकी पेमेंट होगी, ठीक है। अगर आपको याद हो तो मैं लास्ट टाइम जो मैं 11th में कराती थी, मैं क्या कराती थी कि आपने ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे और यहाँ लिखते थे टू इंटरेस्ट ऑन लोन, तो यहाँ क्या आता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो एंट्री क्या होती थी हमारी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, यही होती थी। तो अभी भी क्या है यहाँ पे देखो, ये क्या लिखा, नॉट पीएल अप्रोप्रिएशन, मतलब ये अप्रोप्रिएशन से पहले देना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। और इसी पार्टनर के लोन को मैं हमेशा क्या करवाती थी, जब हम बैलेंस शीट बनाते थे, तो मैं आपको क्या बोलती थी, लोन किधर आता है, लायबिलिटी साइड, ये आता था लोन, है ना, क्योंकि हमें देना है, और यहाँ पे आता था इंटरेस्ट ऑन लोन। मैं बोलती थी या तो ऐड कर दो या अलग से लिख दो, तो वो यही उसने किया कि जो पार्टनर का जो ये वाला लोन है जो मैंने यहाँ पे दिया है ये मैंने डेबिट कर दिया और इसको कहाँ पे भेज दिया, लोन में भेज दिया, ठीक है। तो ये जो मैनेजर कमीशन ये पहले आते हैं। अब नाउ पार्टनर सैलरी और कमीशन, पार्टनर सैलरी और कमीशन क्या होता है, जो हमें देना पड़ता है, और हम ये कब देते हैं, जब हमारे सारे खर्चे पूरे हो जाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस, और किस तरफ होता है ये देख के बताओ, यहाँ पे ये इस तरफ होता है ना पार्टनर सैलरी, देखिए ये वाला पार्टनर सैलरी, तो एंट्री क्या होगी, एंट्री हमारी क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी। जो ऊपर वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगी, पहले आप एक बार इसको कर लेते हैं, डोंट वरी। तो ये होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी, हो गई ये। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। अगर मुझे पार्टनर को देना है तो प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो प्रॉफिट हुआ तो हमारा वो डेबिट हो जाएगा, और पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, क्रेडिट, क्योंकि हमें देना है टू। और मान लीजिए कोई लॉस है तो ये एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। अगर हमें पार्टनर को कुछ देना है तो पार्टनर की हमेशा कैपिटल होगी क्रेडिट, बस आप ये भी ध्यान रखोगे ना तो भी काफ़ी, क्यों,
क्योंकि कैपिटल, अगर मैं 11th की बात करूँ, मैं हमेशा आपको कैसे बताती थी, कैपिटल क्या होती है, हमेशा हमारी क्रेडिट होती है। मुझे कुछ देना है, कैपिटल को बढ़ाना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। भाई अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट तो मैं पार्टनर को दूंगी। जब मैं पार्टनर को प्रॉफिट दूंगी तो क्या करूंगी, उसकी कैपिटल को क्रेडिट। और ये पैसा कहाँ से आया, ये मेरा क्या है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट कहाँ से मिला मेरे को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नहीं मिला, क्योंकि ये पार्टनरशिप है। तो कहाँ से मिला, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। और लॉस है तो यही हमारी उल्टी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि जो ऊपर वाली एंट्रीज हैं वो क्या कहती हैं। अब ऊपर वाली एंट्री कुछ नहीं कहती हैं, हमें ना हर एक अमाउंट को हमें एक अकाउंट में डालना पड़ता है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि ये प्रॉफिट एंड लॉस टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। इससे पहले जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, मैं हाथ में तो अपने पार्टनर को कुछ नहीं दूंगी, पता है ना आपको ये बात। मैं क्या करती हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करूँगी डेबिट, और कहाँ पे रख दूंगी, उसको कैपिटल में दे दूंगी। अब ये करंट अकाउंट आपको मैं नीचे बताऊंगी करंट अकाउंट क्या होता है। तो सिंपल सी बात क्या है, मैं पार्टनर के हाथ में कुछ नहीं दूंगी, तो ये जो क्रेडिट था ये क्या हो गया, डेबिट, और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब नीचे आ जाओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो हमारी एंट्री ये तो आपको समझ में आ गई थी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। कैसे आया था ये देखो ऊपर हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किधर है, देखो ढूंढो जल्दी से। हाँ, यहाँ पे ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये हो गया डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। सो जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेरा क्या है, डेबिट है, तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और मैं किससे लूँगी ये, मेरे उसको तो ना, तो वो मेरे को कैश में देगा ना कुछ देगा, तो मैं किससे लूँगी, उसकी कैपिटल में डाल दूँगी। याद है आपको ड्राइंग किस में से माइनस होती थी, कैपिटल से माइनस होती थी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी किस में से माइनस होगी, कैपिटल से माइनस होगी। अकाउंटिंग इक्वेशन में भी हम ऐसे ही करते थे, कैपिटल में ही ऐड करते थे और कैपिटल से ही माइनस करते थे। होप यू अंडरस्टैंड दिस नाउ। सो इंटरेस्ट ऑन लोन, मैंने आपको ये तो बता ही दिया था कि जो वो लोन है वो तो कंपलसरी है देना। तो वो यहाँ पे बस आपकी एंट्री क्या होगी, लोन देना है, देंगे, लेकिन हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे, एप्रोप्रिएशन नहीं लिखेंगे। ठीक है, और हमारा पार्टनर का लोन है, तो पार्टनर का लोन किस में जाएगा, पार्टनर के लोन में ही जाएगा। बड़ी सिंपल एंट्रीज है। पहले आपको ये वाली एंट्री आ जाएंगी तो ऊपर वाली अपने आप आ जाएंगी। ऐसी सैलरी और कमीशन है, मैंने सैलरी कमीशन पार्टनर को दी ना, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू सैलरी, लेकिन मैं उसको हाथ में दूंगी, बिल्कुल भी नहीं दूंगी। तो मैं क्या करूँगी, उसकी सैलरी को उठा के उसकी कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दूंगी, उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, कैश में उसे कुछ नहीं मिलेगा। इसी तरीके से ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। अब बात आती है, होप आपको एंट्री समझ में आ गई होंगी। इनकेस नहीं आई है कोई बात नहीं है, दोबारा भी बता दिए जाएंगे, क्योंकि आगे जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे तो साथ साथ आपको इसकी रिवीजन भी